Hello dear students, welcome to ICB sessions. This is Ajay sir here. Hope you all are doing well. In today's session students, I'm here to guide you with the mathematics board examination tips for maths part 1, that is algebra. Now students, we all know that in mathematics there are total 15 chapters available, and out of these 15 chapters there are total 7 chapters of algebra. That is chapter number 1, real numbers, which has weightage of 6 marks in the board examination. Second one, that is polynomials, which has weightage of 7 marks in the board examination. Third chapter, that is linear equations in two variables, which has weightage of 7 marks in the board exam. Fourth one, that is quadratic equations, which has weightage of 5 marks in the board exam. Fifth one, that is arithmetic progression, which has weightage of 1 mark in the board exam. And the last two chapters, that is chapter number 14, statistics, which has weightage of 10 marks, and chapter number 15, that is probability, which has weightage of 1 mark in the board examination. So algebra comes for total 37 marks in the board examination. Approx 35 to 40 marks के लिए आता है. Now there must be some students, they must be thinking that कि sir यहाँ पे there are two chapters, that is arithmetic progression and probability, which has weightage of only 1 mark. तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ के खाली 1 मार्क के लिए आने वाला है. तो स्टूडेंट्स, in CBSE board always remember there is no specific chapter wise weightage. रियल नंबर्स के लिए तो ठीक है 6 मार्क्स का वेटेज होता है, but for chapter number 2, chapter number 3, 4 and 5, this 4 chapter has weightage in a group में weightage है. And also for the last two chapters, that is statistics and probability, इनका की group में weightage available है. That means इन चारों टॉपिक को मिला के chapter number 2, 3, 4 and 5, इन चारों टॉपिक को मिला के बोर्ड एग्जाम में weightage है 20 marks. Total 20 marks का weightage है. That means either polynomials will come for 1 mark and arithmetic progression will come for 7 marks. Quadratic equation, linear equations same रहेगा 7 marks, 5 marks. Or it will be like polynomials coming for 7 marks, linear equations coming for 7 marks, quadratic equation coming for 1 mark and arithmetic progression coming for 5 marks. Like that थोड़ा बहुत ऊपर नीचे changes हो सकता है, but the total weightage for these 4 chapters is 20 marks. But that doesn't mean कि arithmetic progression एक ही मार्क का आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है. Same way for chapter number 14 and 15, statistics and probability, the total weightage for these two chapters together is 11 marks. That means it will be like statistics 8 marks के लिए आ सकता है and probability 3 marks के लिए, या फिर statistics can come for 6 marks, probability can come for 5 marks. Like that total weightage 11 marks है. That doesn't mean कि probability एक ही मार्क के लिए आने वाला है. It is the general weightage which is available in the sample paper of this academic year, right? Now talking about the 80 marks paper, you all know that this academic year the paper pattern has changed. We need to attempt total 36 questions in 3 hours time. So let's have a look at the new paper pattern for this academic year for mathematics, both standard maths and basic maths. The paper pattern is same. So here for this academic year we are having 2 parts in the question paper, that is part A and part B. Part A has all the questions which are of 1 mark. 1 mark के सब questions रहेंगे. And part B has the questions which are of 2 marks, 3 marks and 5 marks. So सबसे पहले यहाँ पे you are having 1 mark questions, that is from question number 1 से लेकर question number 16 तक. Each and every question is of 1 mark. Total 16 questions will be there. That means 16 marks के 1 mark के questions आने वाले. तो हाथ के marks से ये marks कहाँ पे जाने नहीं चाहिए. Next one for question number 17, 18, 19, 20. This academic year you are having case study questions. Total 4 questions are there. Each and every question has 5 sub questions, objective type questions. Out of that 5 questions you need to attempt any 4, right? So 4 questions
each question is of 4 marks, that means total 16 marks का weightage हो गया. Coming to next part, that is part B. From question number 21 to question number 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26, you will be having very short answer type question which are of 2 marks. 2 marks के questions, total 6 questions, that means the weightage is of 12 marks. Then next you are having 3 marks question, that is short answer type question, starting from question number 27 to question number 33. 27, 28, 29, 20, 30, 31, 32, 33. Total 7 questions will be there. Each question is of 3 marks. That means the total weightage is of 21 marks. And the last one, you are having long answer type questions, that is 5 mark questions. That is question number 34, 35 and 36. Total 3 questions will be there. Each question is of 5 marks. That means total 15 marks हो गया. So for this academic year, we know that total 36 questions will be there and paper is of 80 marks. The remaining 20 marks will be given from the school under the internal assessment based on the practicals, projects, assignments, notebook submission and all that. Talking about some general tips to excel in mathematics. The students, we are having still 1 month left for the board examination. In this 1 month, you need to study hard. At least for mathematics, you should give 2 to 3 hours on daily basis. Either it is for algebra or it is for geometry. Minimum 2 to 4 hours का time आप लोग को देना चाहिए for this mathematics. In mathematics आप लोग जितना practice करोगे उतना better है. अभी practice करना क्या है? सबसे पहले in board examination, always remember that in CBSE board exam we are having 70-30 pattern. That means 70% of the question will be from textbook, textual concepts will be there. Only 30 to 20% questions will be outside question. Outside means textually concepts होंगे, थोड़े से twisted question रहेंगे, solved example के भी questions हो सकते हैं, right? So it's better always solve exercise first along with the solved example. So I'm going to give you the basic idea रिगार्डिंग अगर हम लोग को एक एक्सरसाइज करे, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज करे, तो उसमें कौन से क्वेश्चन मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, कौन से सेकंड स्टेज में रखना है, कौन से थर्ड स्टेज में रखना है और कैसे कवर करना है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द सीक्वेंस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर रियल नंबर्स as we know that the weightage is of 6 marks. Now in this chapter we are having only 4 exercises, right? So यहाँ पे you can see there are 3 columns available. The first column is prepared, second column is sufficiently prepared and third column is well prepared. So सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना, प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड का मतलब क्या कि अब तक आप लोग की ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए. तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोग की फर्स्ट कॉलम रखना है. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट 70% सोच सकते हो कि मेरा मैथ्स का पढ़ के हो गया है. देन कमिंग टू 30%, दैट इज सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से करना है, क्या करना है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, प्रिपेयर्ड में यू कैन सी एक्सरसाइज 1.1 में से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है. नाउ इन दिस कॉलम देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस जो दिस एकेडमिक ईयर डिलीटेड किए गए हैं. ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चंस आप लोग इसमें से स्किप करना है, वो नहीं पढ़ना है फॉर दिस एकेडमिक ईयर. एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है. 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 6 एंड 7 करना है. ठीक है, 1.3 तो आप लोग को पूरा करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां पे आप लोग को क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है. देन एक्सरसाइज 1.4 अगेन पूरा करना है. बहुत छोटा एक्सरसाइज है जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, check whether the given number is terminating decimal or non-terminating decimal, or the question will be like, you check after how many places
the decimal expansion terminate. So that type of question comes from exercise 1.4 जो आप लोग को properly करना है. Then solved example, first one textbook page number 5, fourth वाला textbook page number 6. ये textbook के page numbers दिए हैं जो आप लोग को वहां से refer करना है. Then theorem 1.4 page number 12 वाला theorem. Now as I told you, इसमें से ऐसे कुछ questions हो सकते हैं जो दिस academic year delete किए हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना है. ये मैंने आप लोग को पूरा टेक्स्ट बुक का प्लानिंग दिया है. डिलेटेड वाले क्वेश्चंस आप लोग क्रॉस मार्क करो, वो नहीं करना है जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इतना होने के बाद आप लोग को आना है सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड में. तो सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड में यू कैन सी ओवर हियर यू आर हैविंग एक्सरसाइज 1.2, 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, देन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5. ये होने के बाद फिर सॉल्व एग्जाम्पल के जो भी मेंशन किए वो करना है. वेल प्रिपेयर्ड में यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब आप लोग को इतना ही करना है चैप्टर 1 में से. Then coming to chapter number 2, that is polynomials. As I told you, the group of 4 chapters has weightage of 20 marks. Polynomials, quadratic equation, linear equation and AP, इन चारों को मिला के 20 मार्क्स का वेटेज है. तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं. तो इसका आप लोग को सबसे पहले प्रिपेयर्ड वाले क्वेश्चंस कवर करना है, जहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में सारे के सारे क्वेश्चंस करना है. 2 ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे आप लोग को जीरोस चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, राइट, अल्फा एंड बीटा वाला कंसेप्ट. 2.2 वेरी सिंपल. अगेन 2.2 में आप लोग को वहाँ पे जीरोस वेरीफाई करना है. 2.1 इज रिलेटेड टू द ग्राफ के कंसेप्ट आप लोग को देखना है, जीरोस चेक करना है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑल्सो आप लोग को चेक करना है. जो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आप लोग को केस स्टडी के लिए भी आ सकते हैं, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल वहाँ पे प्रॉपर्ली रिफर करना. देन आप लोग जा सकते हैं सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड के पास, दैट इज एक्सरसाइज 2.3. 2.3 में से कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड कर दिए हैं, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम बेसिस के क्वेश्चंस जो आप लोग को नहीं करना है. सो आप लोग को ऑर्डर इस तरीके से रखना है, मतलब प्रिपेयर्ड वाले क्वेश्चंस करना है, देन सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड, देन वेल प्रिपेयर्ड वाले क्वेश्चंस, राइट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. Now here in prepared you are having first of all exercise 3.1 question number 2 का थर्ड वाला करना है. Then 3.2 का आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 करना है, राइट. देन अकॉर्डिंगली आप लोग को जो सीक्वेंस दिए, इस सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखोगे. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पहले टिक करोगे. यू विल कीप एम्प्टी का नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू इन विच यू आर हैविंग आंसर्स अवेलेबल. तो 3.1 का अगर आप लोग सेकेंड क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हो तो आप लोग को पहले आंसर गो थ्रू करना है. आंसर गो थ्रू करने के बाद एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड स्टार्टिंग के स्टेप्स कि मतलब कौन सा फॉर्मूला लिखा है, कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, उतना तो आप लोग को समझ में आएगा, राइट. सेकेंड ऑप्शन यू आर हैविंग रोबोमेट प्लस एप्लीकेशन अवेलेबल विद यू इन विच ऑल अवर एक्सपर्ट टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर. सो इन बिटवीन इफ एनी क्वेश्चन लाइक कि कोई क्वेश्चन मुझे नोट्स में से गो थ्रू करके समझ में नहीं आ रहे, कोई स्टेप्स पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, सो ओपन रोबोमेट एंड वो वीडियो आप लोग देख सकते हो. तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट, कौन से मॉड्यूल में अवेलेबल है, उसका भी प्लानिंग में आप लोग को आगे देने वाला हो. सो आगे आप लोग को प्लानिंग देख सकते हो कौन से मॉड्यूल में कंसेप्ट है. मतलब आप लोग एक टाइम भी पता चलेगा कि एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा. देन सॉल्व्ड एग्जांपल्स आल्सो यू कैन सी. देन सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड एंड देन वेल प्रिपेयर्ड वाले कंसेप्ट्स आप लोग को क्लियर करना है. सेम फॉर quadratic equation also. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है, चेक करना है whether the quadratic equations given equations are quadratic equations or not. 4.2 वाले क्वेश्चंस, फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चंस. 4.3 वाले क्वेश्चंस जहाँ पे फॉर्मूला मेथड वाले क्वेश्चंस. 4.4 वाले क्वेश्चंस दैट इज द सम्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स आप लोग को फाइंड करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस, राइट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, arithmetic progression. You are having total 3 exercise, 5.1, 5.2, 5.3, right. तो 5.1 में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करना है. उसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है सारे सब क्वेश्चन. 5.2 का आप लोग को ऑर्डर दिया है, देन 5.3 का सीक्वेंस दिया आप लोग को फॉलो करना है. टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो एंड चैप्टर नंबर 15 इन सेम ऑर्डर you need to practice.
तो हियर यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेटेज यहाँ पे 6 मार्क्स बोला है, मिनिमम 6 मार्क्स फॉर वन चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स कैन कम फॉर 6 मार्क्स, द प्रोबेबिलिटी कैन कम फॉर 5 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल वेटेज 11 मार्क्स होगा. ओके, एंड or else probability can come for 8 marks, statistics can come for 3 marks, 8 plus 3 11 marks हो गया. टोटल वेटेज इन दोनों टॉपिक का 11 मार्क्स है. ओके, मिनिमम 6 मार्क के लिए एक टॉपिक आ सकता है. तो आप लोग को ये ऑर्डर फॉलो करना है, prepared, sufficiently prepared, well prepared. Now talking about some important tips while attempting the paper of mathematics. The very first tip is रीड द पेपर थॉरली. आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट बिफोर दिया जाता है. तो जैसे आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आ गया, तो आप लोग को स्पेशली जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस है और वाले जो क्वेश्चंस है, उसमें से आप लोग को जो इजी क्वेश्चन लग रहा है, मतलब आप लोग को जिसमें कॉन्फिडेंस है ये क्वेश्चन में कर सकता, उस क्वेश्चन को टिक करके रखना, सो दैट व्हाइल राइटिंग द पेपर यू विल फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस ओनली. तो आपका टाइम वहां पे वेस्ट नहीं होगा. Second concept is solve the question paper in the given sequence only. In case you do not know the answer to the particular question, then leave space for that and go on the next question without wasting much time. काफी टाइम क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हम लोग वहाँ पे अटक जाते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है, हम लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं कि नहीं मुझे करना है करके, बट बिकॉज ऑफ दैट आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, आप लोग और टाइम वहाँ पे ले रहे हो. तो आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए आप लोग को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, और फास्ट के चक्कर में आप लोग सिली मिस्टेक करके आओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. फिलहाल के लिए क्वेश्चन जितना हो रहा है उतना अटेम्प्ट करो, बाद में का करने के लिए थोड़ा जगह रखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लो. इफ यू डू नॉट नो द कंप्लीट सोल्यूशन टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन राइट टिल द नोन स्टेप. कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो बाहर का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ट्विस्टेड आ गया, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, उसको पूरा छोड़ के मत आना स्टूडेंट्स. एटलीस्ट आप लोग को क्वेश्चन देख के ये तो क्लिक होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, कौन सा स्टेप हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. एटलीस्ट राइट टिल द नोन स्टेप, बिकॉज इन मैथमेटिक्स ईच एंड एवरी स्टेप हैज मार्क्स. हर एक स्टेप को मार्क्स होते हैं. तो आप लोग के जितने स्टेप्स राइट रहेंगे उसकी अकॉर्डिंगली आप लोग को मार्क्स मिल सकता है, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन ब्लैंक. And last but not the least, that is review your answer sheet in the last 20 minutes. आपका मैथ्स का पेपर इस तरीके से होना चाहिए कि लास्ट में आप लोग को 15 to 20 मिनट्स बचने चाहिए फॉर चेकिंग द पेपर. ऑलरेडी आप लोग को टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर प्रेजेंटेशन का सेशन बताया गया है, तो वो प्लानिंग फॉलो करके लास्ट में जो आप लोग को टाइम बचेगा उस टाइम में चेक करना है कि सब पॉइंटर्स आप लोगों ने प्रॉपरली लिखे कि नहीं, ग्राफ आप लोगों ने प्रॉपरली अटैच किया कि नहीं, ग्राफ में स्केल लिखा है कि नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश सब कुछ प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में रखा है कि नहीं, ये सारे पॉइंटर्स आप लोग को चेक करना है प्रॉपरली. देन टॉकिंग अबाउट द मॉडल नंबर्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट concepts from each and every chapter of algebra. In the real numbers, students, you are having total of 5 concepts. Out of these 5 concepts, the first 2 concepts are deleted. That is Euclid's division algorithm and HCF find करने वाले questions using Euclid's division is deleted from the syllabus. तो ये तो आप लोग को करना ही नहीं, इसको साइड में कर देना. तो प्रीवियस वाला जो आप लोग को प्लानिंग बताया था उसमें से ऐसे कोई क्वेश्चंस रहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन, वो आप लोग को नहीं करना है, उसको कैंसिल कर देना है. देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आप लोग को 1 मार्क के लिए आ सकता है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइज करके वाले क्वेश्चंस, राइट. प्रूविंग गिवन नंबर्स एज इरेशनल, जैसे मैंने आप लोग को बताया है 1.3 वाला एक्सरसाइज पूरा करना है प्रॉपरली. रूट 5 इज एन इरेशनल आ सकता है 3 मार्क्स के लिए. कोई भी क्वेश्चन. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट 1.4 एक्सरसाइज, वो भी क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉपरली करना है. सो मॉडल नंबर फॉर each and every concept is already mentioned over here. This is a model number in RoboMed plus application available. वीडियो लेंथ हर एक मॉड्यूल का कितना आप लोग को दे दिए. दैट मीन्स अगर आप लोग को रियल नंबर्स रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे, तो आप लोग को टोटल 35 मिनट्स का टाइम देना पड़ेगा. उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन का तो मॉडल हट गया, मतलब उतना टाइम माइनस करके दैट विल बी योर टोटल टाइम फॉर स्टडिंग रियल नंबर्स एट द लास्ट मोमेंट रिवाइज करने के लिए. सेकेंड टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल्स.
In polynomials, you're having this many concepts, out of which the last one, that is division algorithm concept, is deleted. That is normal जो division वाले questions है, जहाँ पे आप लोग को आंसर लिखना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, राइट, जो क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है, डिविडेंड, डिवाइजर, उस टाइप की नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया, वो नहीं करना आप लोग को. And you should focus on types of polynomials based on number of terms, based on degree, वो सब आप लोग को प्रॉपरली क्लियर करना है. वैल्यू एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप लोग को चेक करना है, वेरीफाई करना है, राइट. देन आप लोग को कोई एक वैल्यू दिया जाएगा जिसको सब्स्टिट्यूट करके मिसिंग टर्म का आंसर फाइंड करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, जहाँ पे आप लोग को फॉर्मूलेस पता है तो आप लोग को सम प्रॉपरली कर सकते हो. तो ये सारे कंसेप्ट्स आप लोग को करना है फ्रॉम दिस चैप्टर. देन टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स. इन दिस चैप्टर यू आर हैविंग अगेन मेनी कंसेप्ट्स, आउट ऑफ विच ओनली वन कंसेप्ट इज डिलीटेड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये आप लोग को नहीं करना है. यू शुड फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट टू मेथड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज इक्वेशन विद बाइनोमियल टर्म्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, राइट, जहाँ पे अपॉन में 2 टर्म्स अवेलेबल रहेंगे. सो वहाँ पे जो भी रिपीट हो रहा है उसको आप लोग को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होता है, अदर देन द गिवन वेरिएबल्स. देन ग्राफ वाले कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करना है. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, जहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so we all know that the answer is unique solution. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. मतलब first two equal है, last two not equal है, तो we all know that it is no solution. ऐसा तो नहीं हो सकता है. Last one, all 3 are equal. That means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Then the equations will have infinitely many solutions. ये सारे कंसेप्ट्स आप लोग को प्रॉपरली याद रखना है. जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, टेक्सचुअल कंसेप्ट्स प्रॉपरली होंगे तो आप लोग को पेपर और इजी लगेगा. नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली 2 मेथड्स आर टू स्टडी, फॉर्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड. नेचर ऑफ रूट्स, 3 टाइप्स ऑफ नेचर. फर्स्ट वन, इफ डेल्टा का आंसर इज 0 देन वी से द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. डेल्टा का आंसर अगर नेगेटिव है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल. डेल्टा का आंसर अगर पॉजिटिव है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. तो ये टाइप की क्वेश्चंस करना है. डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ट्रायंगल की तरह हम लोग बनाते हैं सिंबल. एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सिचुएशनल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड. ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट डिलीटेड, बट जो सिचुएशनल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है एंड जो रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस डिलीट कर दिए, वो नहीं करना. कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन आइडेंटिफाइंग वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. एपी मतलब सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए तो ये हम लोग एपी बोलेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी. तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, डी, दैट इज t2 minus t1 टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म. To find the term of an AP, find 4th term, find 5th term, A5, A6, उसका फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला, A plus n minus 1 into D, एक ही फॉर्मूला है. एंड नेक्स्ट SN का फॉर्मूला, दो टाइप, स्मॉलर फॉर्मूला, बिगर फॉर्मूला. स्मॉलर फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं when we know the last term of the EP, that is nth term of an EP. तो उसका फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट A plus AN, एंड SN का बिगर फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into D. सो फॉर्मूला अगर पता है कोई भी सम आप लोग इजिली कर सकते हो. देन फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टूडेंट्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन सम ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के जो सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स वो डिलीट कर दिए, वो आप लोग को नहीं करना है. कमिंग टू चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. Very many concepts are available in this chapter, out of which 2 concepts are deleted. That is as step division method, third method जो आप लोग को नहीं करना है, step division method जो delete कर दिया है.
एंड लास्ट वन दैट इज ओजेय कर्व, जो नहीं करना है। तो ये दो कंसेप्ट आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एंड जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है जो ग्राफ वाला है स्टैटिस्टिक्स का ओजेय कर्व, वो नहीं करना है। तो आप लोग को करना क्या है, क्लासेस दो टाइप की क्लासेस है, कंटिन्यूस क्लासेस, डिसकंटिन्यूस क्लासेस। कन्वर्जन कैसे करना है, 0.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के लिए। क्लास मार्क, उसके लिए फॉर्मूला है, क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करने के डिवाइड बाई 2 करना है। डायरेक्ट मेथड, मीन का फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स आई मीन्स द क्लास मार्क जो हमने अभी डिस्कस किया। देन डायरेक्ट मेथड होने के बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, अगेन यू आर हैविंग द फॉर्मूला दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स डी आई का अलग से फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तो ऑलरेडी पता है क्लास मार्क, ए मीन्स assumed mean जो हम लोग को assume करना है from xi column। then for mode also we are having one formula, एक ही formula है mode का formula, l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h। last median, median के लिए भी एक formula, median is equal to l plus n upon 2 minus cf upon f into h। तो students what I suggest over here is मैथमेटिक्स में स्पेशली ऐसे जो चैप्टर्स है जिसमें काफी सारे फॉर्मूलास अवेलेबल है, फॉर्मूलास आप लोग अगर भूलोगे, मिस्टेक करोगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। तो मेक वन फ्लो चार्ट, एक फुल स्केप पेज लो जहाँ पे ऊपर हेडिंग दो गोल्डन शीट ऑफ फॉर्मूला, एंड जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूलास अवेलेबल हो फॉर्मूलास प्रॉपरली लिख के रखो, एंड जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हो जो आप लोग का स्टडी टेबल है वहाँ पे स्टिक करके रखो, सो दैट आप लोग का नजर हमेशा उसके ऊपर पड़े, फॉर्मूलास के ऊपर। जो चीज को आप लोग बार बार देखोगे वो आप लोग को और अच्छे तरीके से याद रहती है, राइट। तो फ्लो चार्ट बना के रखो। एंड नेक्स्ट वन, द लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी नथिंग इज डिलीटेड बिकॉज ऑलरेडी बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। तो उसमें से आप लोग को टाइप्स ऑफ इवेंट्स करना है, इम्पॉसिबल इवेंट इसका प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी 1, उस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आता है। फाइंडिंग द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इन प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को खाली 3 ही स्टेप्स फॉलो करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स वहां पे अवेलेबल है वो चेक करना है। सेकेंड वन, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट। फेवरेबल मीन्स समथिंग दैट वी विश शुड हैपन और शुड नॉट हैपन, उस टाइप का कंसेप्ट, वो इवेंट्स हम लोग को, वो आउटकम्स हम लोग को चेक करना है जो भी पूछा रहेगा। एंड लास्ट स्टेप फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दोनों को डिवाइड करके रिड्यूस करके जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करना है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी का ऑलवेज जो आंसर है वो ऑलवेज लाई करता है 0 एंड 1 के बिटवीन, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो आप लोग को जो फाइनल आंसर आएगा, एमसीक्यू में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आंसर ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है या नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए आंसर 0 और 1 के बिटवीन लाई होता है। एंड और एक फॉर्मूला है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग वाला आंसर, जहाँ पे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर पी ऑफ ई पूछा है तो 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई पूछा है तो 1 माइनस पी ऑफ ई। ई मीन्स इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। तो वो टाइप के कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करना है। वेरी सिंपल चैप्टर प्रोबेबिलिटी। So students, I hope whatever we have discussed in this ICB session is very much clear to you all. Kindly follow all the guidelines which we have discussed in today's session. Focus more on textual questions. Once the textbook is clear, solved examples are clear, then only go with some additional papers. You should solve at least 4 sample papers. सबसे पहले तो अपने क्लासेस में सेमी प्रीलिम 1 एग्जाम हुआ है, सेमी प्रीलिम 2 हुआ है, प्रीलिम 1 हुआ है, एंड यू विल बी सॉल्विंग सम आईसीबी पेपर्स आल्सो, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग प्रीलिम 2 एग्जामिनेशन। तो एटलीस्ट क्लासेस में जो पेपर्स हुए उसको प्रॉपरली करके रखना,
इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम के टाइप की क्वेश्चंस है, जो उसी टाइप की क्वेश्चंस आते हैं. एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू गो थ्रू विद सम एडिशनल पेपर्स और एक्स्ट्रा पेपर्स अगर प्रैक्टिस करना है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था एक एप्लीकेशन है NCERT बुक सॉल्यूशन, उसमें जाके आप लोग को पेपर्स 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, वो 10 सैम्पल पेपर्स गो थ्रू करना है एंड स्पेशली फोकस मोर ऑन द केस स्टडी क्वेश्चंस, जो हर एक पेपर में 4 केस स्टडीज क्वेश्चन है, मतलब 10 सैम्पल पेपर 10 into 4 40 केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, प्लस क्लासेस के पेपर, स्कूल के पेपर्स. इसके अलावा भी काफी सारे मटेरियल्स है, बट एज ऑफ नाउ पहला टेक्स्ट बुक क्लियर करना है, सैम्पल पेपर्स क्लियर करना, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. आप लोग को यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बोर्ड एग्जाम आप लोग को पता है कि 2 जून को होने वाला है, तो उस टाइम पे आप लोग को जो ऑर्डर रखना है पढ़ने का अलजेब्रा के चैप्टर्स के लिए, तो ऑर्डर क्या रखना है, सबसे पहले आप लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कवर करोगे, जो 11 मार्क्स का वेटेज है, मतलब हाथ के मार्क्स है, ये कवर हो गया, मतलब ये तो क्लियर कि 11 मार्क्स फिक्स है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आना ही चाहिए. नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को करना है, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड लास्ट में रखना है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, बिकॉज ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो ये कवर करना है, राइट. सो गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम. Don't let the fear get the better of you, students. I believe in you and I believe you will excel and score as per your target. So do well in the examination. God bless you all. That's all from my side. See you all with the flying colors result. Ajay sir here signing out.